Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 23rd of July 2024 and you are watching the Hindu newspaper analysis. In today's newspaper, we have around 10 news articles, and in this news only, we have around 10 more articles which we are going to cover because this is the economic survey and I have created a full wholesome gist and summary for you to use it in your answers, to use it in your upcoming exams, whether it's in essay, whether it's in your GS 1, 2, 3, or 4. You can use this data, and I will be guiding you that not only the data, what the points and recommendations and suggestions the survey has provided, all of that can be used very well. Next editorial talks about MLAs. The article 99 of Constitution and article 198 of the Constitution will be dealt in this news about these MLAs. Further, we will see two articles from the America's politics. Okay, that what is the changing dimension of this politics. We will also see the India Green Deal program. What is it and why is it being proposed that budget should consider this as a financial measure, but there is political will which is required for this. We will also see a brief about gig workers and gig economy, because we have already discussed this editorial in detail in the past analysis. हावेवर वी ऑल्सो नीड टू गो थ्रू द मनी बिल, क्योंकि कल ही हमने इस पर एक MCQ डिस्कस किया है जो UPSC में पूछा गया था और इसी साल पूछा गया था. वी विल सी कि आज के एडिटोरियल में मनी बिल के रिलेटेड क्या और चीज़ें डिस्कस की जा सकती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूसिविटी ऑफ टू जेंडर्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, इन द अपर and higher levels of corporates, with that is the board of directors also. We will at the end talk about the neutrinos, the fundamental particles of the universe, and the basic study material of the particle physics. Let's start the discussion. As you all know that we have this tradition that we begin the discussion with a UPSC prelims PYQ. This question was asked in 2024, and see, the beauty of this question is that it asks you two things and gives you an information also कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो था वो एस्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में. उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और अमेंडमेंट के बाद काउंसिल में अब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. This is just to confuse you with the original act and the amendments. ठीक है. Otherwise, if you see, these three have been the members. These three statements are true, while as Home Minister of India is not the member after the amendment. That is what is highlighted on this slide, that post the amendment, Northeastern Council to act as a regional planning body. Hence, option A is the correct answer for this. The president is going to nominate the chairman and of the council, and he needed not to be nominated from amongst the members. Okay. Let's begin the Hindu analysis, and this uh, analysis, as I told you, begins with the full summary of economic survey which was presented yesterday. Now the point is कि सबसे पहला न्यूज़ जो एडिटोरियल ये आज के न्यूज़पेपर में आया था about the headlines, it talks about that Indian economy is likely to grow by 6.5% to 7%. ठीक है. अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ये जो ग्रोथ है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है 6.5 to 7% की ग्रोथ होगी, ये कैसे होगी और इसका हम यूज़ क्या करेंगे. दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर योर आंसर्स. ठीक है. डायरेक्टली हाईलाइट ऑल द क्वेश्चंस like whatever asks you about the growth of India. ठीक है. और यूज दिस फैक्ट इन योर आर्ग्यूमेंट्स टू सब्सटैंशिएट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. ये चीज़ें मैं अपने आंसर राइटिंग सेशंस में बिल्कुल समझाता हूँ कि कैसे होता है ये चीज़ें और कैसे करते हैं इसको, सब्सटैंशिएट कैसे करते हैं और क्या करना होता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. फर्दर, I want you to understand that how important is it to have a viewpoint and understand that what to write and what not to write. See, यहाँ पे मैंने एक क्लासिक एग्जांपल लिया हुआ है, like our prime minister, the opposition leader,
and the leader of the, you can say, the Communist Party of India. We all know him, Sitaram Yechuri, the general secretary. But the leader who has a socialist tendency, ठीक है, and lastly we will also see the minister, ठीक है, the minister of industries, or you can say that he is the one who is has taken all the burden of growth. Now, I want you to understand the difference between all of these statements. PM Modi talks about Viksit Bharat, and this Viksit Bharat is the term which we are going to use in our answers. But when we talk about the criticism of opposition, which talks about like FDI should come from China also, survey says FDI should come from China also, and Modi ji gave a political clean chit to China while insulting 20 martyrs in Galwan. So this is a statement which we cannot use in our answer. This is a bureaucratic statement. This is a political statement, a political criticism. This is not a bureaucratic statement, and these statements cannot be used in your answers. Further, there is an important thing which you should understand over here, that is कि हमारे आंसर्स में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें आ सकती है, बट प्रोवाइडेड कि आपके पास इन सब का डेटा हो. Once you quote these things, you need to quote data also, and then only you can justify your answer. And once you do this, then your answer becomes best, ठीक है, and then only it can get good number of marks. Lastly, you will also see that how much the statement from a minister is different from all the political statements given over here. The minister talks about the 8.2% growth in the real GDP growth in financial year 24, and India is poised to sustain the economic resilience. Take it, this is the keyword, economic resilience, which we can use. However, the any sort of over exaggeration of the statements is not to be promoted in the answer writing. If you see this news page total, ठीक है, तो there are news from healthcare expenditure, the criticism by opposition, the employment prospects, and the national prospects about the national development and national consciousness about the mental health and the shift of GDP about the mental health. फर्दर यू विल ऑल्सो सी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, मनरेगा के ऊपर, और बहुत सारे नैरेटिव्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है. अब इन सब चीज़ों का समरी आपके सामने है, और इन सब चीज़ों को समझना है कि कैसे यूज़ करेंगे. सबसे पहली चीज़, आउटलुक एंड ग्रोथ. दिस सेट्स द ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट. Once the optimism is in the market, then only the investors will be positive about investing in the market, and once the investment comes in, the growth flows after that. ठीक है, तो that is how this optimism and this outlook being positive is important, and it says that in this scenario it's expected that our economy will grow by 7%, up to 7% in the upcoming fiscal year. In this fiscal year, the economy has largely recovered from COVID-19 scars, and the potential is around 7% growth in the upcoming years. ठीक है, the economy has broadly caught up with the pre-COVID growth trends. Further, the policy priorities and recommendations addressing inequality and unemployment are the key items which should be considered, and this is highlighted by economic survey. तो अभी जो ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप डायरेक्ट अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, इस चीज़ को एम्फेसाइज किया, inequality or unemployment को. That, for example, if you are writing about inequality, or if you are writing about gender inequality, you can start with the economic survey of 2023 as rightly emphasized on inequality and gender inequality. Further, it has also paid its emphasis on unemployment, as it highlights that these two things should be among the key policy priorities of the government of India. ठीक है, तो these statements you can use. Further, the economic survey also recommends next generation reforms, ठीक है, for the supply side, that there is a need of next generation reforms, and especially when there is a slowdown in IT sector for the hiring. Survey urges the corporate sector कि आप ज़्यादा से ज़्यादा job creation करो. Once you create more jobs, then only we can have growth.
द सर्वे ऑल्सो आउटलाइन, सर्वे आपको देता है आज का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये मैंने मेंशन किया है कि 6 pronged strategy, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे, सर्वे हाईलाइट 6 pronged strategy and it says that you should prioritize the private sector and you should prioritize the private sector investments and other and address the various other economic sectors. द स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स अगर आप देखो तो स्किल डेवलपमेंट पे देर वाज जो बहुत ही क्लीशे टर्म थी हमारी कि जो हम यूज़ करते थे बार बार अपने आंसर्स में कि इंडिया का जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, बट इफ़ यू सी दैट टुडे द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स दिस थिंग कि हमारे 51% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल. नाउ यू हैव दिस डेटा, यू कैन कोट दिस इन योर आंसर्स. अर्लियर जैसे हम पहले कुछ और कोट करते थे कि हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, बट नाउ इट्स ओनली 49% विच इज़ नॉट एम्प्लॉयबल. ठीक है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैन बी अ बूस्ट, but you should know about the academic bank of credits and APAR, the automated permanent academic accounts registry. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है ये. और ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये क्रेडिट सिस्टम क्या काम करेगा और हाउ इकोनॉमिक सर्वे, वाई इकोनॉमिक सर्वे इज मेंशनिंग दिस, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबिलिटी ऑफ एजुकेशन सेक्टर. कि आपने एक कोर्स लिया तो या एक सब्जेक्ट लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग उसी सब्जेक्ट को परस्यू करना है, ऐसा नहीं है. यू जस्ट नीड टू फुलफिल योर क्रेडिट्स by different subjects, and once you opt for different subjects you get a multitude of experiences which makes you more market ready. Done. The important data over here is that there is an increase of 218% in the budget allocation for women's welfare and empowerment schemes from past many years. You can also see 37% हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो कि बढ़ चुका है. सर्वे ऑल्सो हाईलाइट द मदरहुड पेनल्टी. अभी ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए. मदरहुड पेनल्टी क्या होती है? ये वो पेनल्टी है जब माँ अपने बच्चे के का केयर करने के लिए अपना करियर छोड़ देती है. ठीक है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं जाती है, वो काम पे नहीं जाती है, वो छुट्टी ले लेती है और उस टाइम पे जब वो आउट ऑफ लेबर फोर्स चली जाती है, दैट इज मदरहुड पेनल्टी. ठीक है. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट दे हैव टू डू इज़ वो अपना करियर छोड़ के उनको बस बच्चों के पीछे ही लगना होता है अगले 5 से 6 साल या 10 साल तक के लिए. एंड देन कमिंग बैक टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कमिंग बैक टू देयर ओन करियर, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर देम. हेल्थ केयर में दी इकोनॉमिक सर्वे हैज़ हाईलाइटेड कि इंडिया का जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड. ठीक है. And there has been an increase of 55.9%. हमारा आज का जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो 55.9% बढ़ चुका है आउट ऑफ द टोटल हेल्थ केयर बजट. इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलती है दैट देर इज अ डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, देर इज अ डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर. ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर. तो हमको ये पता है ये बात कि अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होता है इंसान का तो जो हमारा पुअर है, द पुअर विच आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस, ये कम हो जाएगा. ठीक है. एंड वंस दिस इज डिक्रीज्ड, हमारे जितने भी मेजर्स है पॉवर्टी को लेके वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. फर्दर इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने एक एक्सटेंसिव कवरेज दी है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को. एंड इसने बोला है कि इंडिया में अराउंड 10%, 10.56% अडल्ट है जो सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, बट वो लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं, वो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं. दे डू नॉट सीक द ट्रीटमेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. और जिसकी वजह से अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को दैट वंस एन इंडिविजुअल is mentally strong and is participating in the economy, then only the nation can grow. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक सर्वे हैज़ हाईलाइटेड. एंड इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बोल रही है जो भी मेंटल हेल्थ के इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें. एंड द हेल्थ केयर प्रोग्राम्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर वे. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़
अबाउट द डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सर्वे हैज़ हाईलाइटेड कि जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और अभी हमारा जो डिफेंस का प्रोडक्शन है इट्स अराउंड 1,08,000 crores, विच इज़ अ गुड थिंग। डिफेंस का अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो अच्छी बात है, बट डिफेंस के अगर इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो गलत बात है। डिफेंस की इंपोर्ट्स नहीं बढ़ने चाहिए, डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड द पॉइंट इज इंडिया इज करंटली वन अमंग द टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टिंग नेशंस, ठीक है। बट हमें थोड़ा और ग्रो करना पड़ेगा, और टॉप 25 में नहीं, टॉप 10 में या टॉप 5 में कम से कम हमें एम करना पड़ेगा आने का। दिस हाईलाइट्स कि प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने, दोनों ने ही इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है, और दोनों का जो ये है कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनरेगा। सी, इन दिस पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर इज टू थिंग्स, ठीक है। वन इज़ कि मनरेगा के लिए डिमांड, कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास जो मनरेगा है इसमें दो चीज़ें होती है, एक है नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकंड इज़ कि आपको वेजेस कितने मिलते हैं, ठीक है। तो देर इज़ अ डिमांड कि ये दोनों को इंक्रीज़ किया जाए, बट इकोनॉमिक सर्वे सेज कि मनरेगा इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, कि रूरल एरियाज़ में परेशानी है, रूरल एरियाज़ में गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्ट्रेस है। ये चीज़ हम मनरेगा से साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे गरीब स्टेट भी हैं हमारे पास जहाँ पे मनरेगा को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, बट वहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे रिच स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ ऑफ दीज स्टेट्स, एंड देर आर वैरिइंग मिनिमम वेजेस इन दीज स्टेट्स। बट यहाँ पे जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है पूरी इकोनॉमिक सर्वे का, एंड उनने बोला है कि जो इनने डेटा लिया है वो डेटा उनने फर्ज डेटा लिया है, लाइक उनने डेटा को टैम्पर किया है, प्लस उनने चेरी पिकिंग की है कि जो जो अच्छा अच्छा डेटा है वही इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूड किया है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एमएसएमईज का डेटा देखो तो ये तीनों चीज़ें तो हमने डिस्कस ऑलरेडी की है, कि फूड इन्फ्लेशन पे भी हमने एक एडिटोरियल बहुत ही एक्सटेंसिव वे में डिस्कस किया था, कि फूड इन्फ्लेशन से कितना, थालीनॉमिक्स पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। और वेज थाली का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, उस पे हमने डिस्कशन किया था। अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो डेटा था, जो CMIE की जो सर्वे थी, CMIE का जो डेटा था, ये जो हमारी आती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसका जो डेटा था, एक्चुअल में ये सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करके अरुण कुमार सर ने एक एडिटोरियल लिखा था, उस एडिटोरियल में था ये, और हमने ये पूरा एडिटोरियल अच्छे से डिस्कस किया था। MSMEs के ऊपर हमारे एडिटोरियल्स आए हैं और जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड दैट इज़ कि ग्राउंड रियलिटीज़ आर सम डिफरेंट, एंड द इकोनॉमिक सर्वे इज शोइंग अ डिफरेंट पिक्चर, दैट इज़ व्हाट ऑपोजिशन हैज़ पॉइंटेड आउट, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज़ कि ये चीज़ हमें याद रखनी है कि असल में इकोनॉमिक सर्वे बोल क्या रहा है। इकोनॉमिक सर्वे सेज कि जो इम्पैक्ट AI का है, जो हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करो, और जो ये इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर में लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको बोल रही है कि आप AI का यूज़ करो और क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है। जितने भी जॉब्स बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएट करो, ना कि आप डिस्प्लेस करो लेबर को, ठीक है। कि इंडस्ट्री से लेबर चला जाए, वो जो आपके पास एम्प्लॉई है वो सब चले जाएं और वो कुछ और करने लग जाए, उनके पास कुछ एवेन्यू ना बचे काम करने को, लाइक फॉर एग्जांपल दी कंटेंट राइटर्स, ठीक है। जब से जनरेटिव AI ने टेक ओवर किया है, तो वी हैव सीन द लेइंग ऑफ कंटेंट राइटर्स हु डू नॉट नो हाउ टू यूज़ AI, ठीक है। बिकॉज AI इज गिविंग योर बूस्ट इन दिस इंडस्ट्री ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है।
So these are the issues and these are the points which we need to understand. Further there will be upcoming articles, जो बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे अभी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आने वाले दिनों में, वो भी हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या और किया जा सकता है और क्या क्या और डिस्कस किया जा सकता है। अभी ये न्यूज़ आ रही है और मैं न्यूज़ इसलिए उठाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको आज तक बताया होगा कि ये जो स्टेट के पेजेस होते हैं इनको छोड़ दो, इनको मत पढ़ो, इनको डायरेक्ट स्किप करो और आर्टिकल पे चले जाओ, एडिटोरियल के पेज पे चले जाओ। बट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, कभी कभी आपको देखना होगा, आपको स्किम करना होगा न्यूज़पेपर को, तब जाके आपको समझ आ जाएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस न्यूज़, तो हो क्या रहा है इन द 10-day मानसून सेशन ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली, वहाँ हुआ क्या है, देयर वाज दिस स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ 2 न्यूली इलेक्टेड एमएलएज। तो ये जो दो नए एमएलएज आए थे, इनको ओथ दिलाना था, ठीक है। और ओथ कौन दिलाता है, वो स्पीकर दिलाता है। अब स्पीकर जो है वो ओथ दिला रहा था, तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया कि द क्वेश्चन अबाउट देयर लीगैलिटी वाज दैट दे शुड पे अराउंड 500 रुपीज ऑफ फाइन ऑन ईच डे because they have entered and they have violated the constitutional norms. अभी ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोल रहा है? आर्टिकल 188 बोलता है कि कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हो, ही शुड नॉट अटेंड और सिट इन दी assembly or he should not sit in the council before taking the oath, ठीक है, before the governor or some person appointed by the governor administers him oath or affirmation। तो ये ओथ कहाँ पे लिखा हुआ है? थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आर्टिकल 188 एंड आर्टिकल 99 एंड आर्टिकल 188 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 99 इज फॉर एमपीज एंड 188 इज फॉर एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इक्वली अप्लाइज टू बोथ। ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी एमपीज बन के आएंगे, ठीक है, जो भी मेंबर्स बन के आएंगे हाउस के, ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ हाउस दे हैव टू टेक एन ओथ। ओथ कौन दिलाएगा? स्पीकर दिलाएगा। और गवर्नर, असल में गवर्नर दिलाएगा, वो जो गवर्नर जिसको अपॉइंट करेगा वही दिलाएगा ओथ, ठीक है। अगर उन्होंने ये ओथ नहीं लिया और वो ओथ लिए बगैर हाउस में आ गए, ठीक है, तो जितने दिन वो हाउस में बैठेंगे पर डे ₹500 का पेनल्टी लगेगा। इफ़ दैट पर्सन नोज कि मैंने ओथ नहीं लिया है और मैं हाउस में बैठ रहा हूँ, तो उस पर ₹500 की पेनल्टी लगेगी हर दिन। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि दोज मिनिस्टर्स who became minister without being an MP, जो MP बन के नहीं आए, जो MLA बन के नहीं आए, MLC बन के नहीं आए, बट वो मिनिस्टर बन गए। अब ये मिनिस्टर के लिए प्रोविजन है कि ये 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है और 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, और 6 महीने तक ये मिनिस्टर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हाउस में भी पार्ट लेगा, हाउस में बैठेगा, बट मिनिस्टर का तो ओथ होता नहीं है ना, उसका तो ओथ अलग होता है। तो MP का ओथ अलग है, मिनिस्टर का ओथ अलग है। द पॉइंट इज कि ये जो बंदा है, मतलब मिनिस्टर का तो अलग कहानी है, मिनिस्टर का केस ही अलग है, बट इस बंदे ने, ये जो मिनिस्टर है, हाउस में बैठने से पहले ओथ नहीं लिया एज एन एमपी, बिकॉज ये एमपी बना ही नहीं। तो देर इज एन एक्सेप्शन कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनको हाउस में बैठने के लिए ओथ नहीं लेना है 6 महीने के लिए, ठीक है। पहली चीज, दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बट दे कैन नॉट वोट इन द हाउस, ठीक है। इनको ओथ नहीं लेना है, इन पे ₹500 की पेनल्टी नहीं लगेगी, बट दे कैन नॉट वोट इन द हाउस। रिमेंबर द एक्सेप्शन एंड रिमेंबर द की फैक्ट, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ तक? तो ओथ हमारा सारा थर्ड शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके साथ साथ आई गेस दिस इज ऑल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस न्यूज़।
Next important editorial talks about the heat stress and the impact of this heat stress globally on the global worker population. तो होता क्या है, बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ये एडिटोरियल में जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हीट स्ट्रेस हो रहा है। हीट स्ट्रेस किस पे हो रहा है? उन लोगों पे जो बाहर काम कर रहे हैं, नॉट लाइक दोज हु आर सिटिंग 24/7 इन एसी। ठीक है, इनमें कौन आते हैं? एग्रीकल्चर वर्कर्स आते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं और भी बहुत सारे वर्कर्स आते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल सेज कि इस हीट स्ट्रेस की वजह से ये जो लेबर है, ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ द बेसिक स्टोरी। एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में लॉस देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई। अब अगर लॉस दिखेगा तो हमें इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी ये एडिटोरियल सजेस्ट करता है। समझ में आ गया? यही है चीज़ें इस एडिटोरियल में जो डिस्कस की गई है। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आईएलओ का एस्टिमेट। आईएलओ 2030 में उनने एस्टिमेट किया है कि 2030 में होगा क्या होगा? 2030 में ग्लोबल वर्किंग आवर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे बाय 2.2%, और उसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी पे असर आएगा और ग्लोबल जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी बाय $2400 बिलियन। अब अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पे, तो ज़रूरी सी बात है कि हमें भी, इंडिया को भी, हमारे देश को भी और हमारे पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक सेक्टर को इसके लिए रेडी होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? अभी जब ये हीट स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से होता क्या है? हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। लाइक जो लोग काम कर रहे हैं 38 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में बाहर धूप में, उनको समझ आता है कि उनकी कॉग्निटिव और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। लाइक जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लाइक जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं एग्ज़ाम देने तो सर बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे फ़ैन भी नहीं चलते हैं। तो 48 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री का टेम्परेचर था इस बार जून में जब बच्चों का एग्ज़ाम था उस टाइम पे, यहाँ यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे दिमाग का चलना और दिमाग का उस स्पीड के साथ चलना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये तो हमको कॉमन 2 घंटे के अंदर फ़र्क दिखता है। अभी जो वर्कर्स 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं बाहर, उनको कितना इफ़ेक्ट करता होगा ये चीज़। यही चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है और ये हमारा एक की पॉइंट बन सकता है अबाउट द इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमी। ठीक है, रेस्ट बाकी सब डिस्कशन जो है इस एडिटोरियल में है, यहाँ तक ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिचुएशन इन इंडिया। वो ये है कि हमें एसडीजीज़ को अचीव करना है 2030 तक, और 2030 में ही आईएलओ का डेटा बोल रहा है कि डिक्रीज होगा $2400 बिलियन का। अब अगर ये होगा तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? इंडिया में प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि अराउंड 200 मिलियन पीपल विल फेस दिस डेडली हीट वेव एनुअली, एंड जिसकी वजह से हमारा वर्किंग आवर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो 2030 तक डिक्रीज होते होते 5.8% का डिक्रीज हो जाएगा। प्लस देर विल बी अराउंड 34 मिलियन पीपल जो इस हीट स्ट्रेस की वजह से इम्पैक्ट में आ जाएंगे इसके। ना व्हाट वी शुड डू इज़, हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव्स होना चाहिए। उसके लिए आईएलओ का एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, उसमें हमें एम्फेसिस देना चाहिए इस बात पे कि हम अपने वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें अब फ्रॉम द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स। सो फ्यूचर सोल्यूशंस आर लाइक हीट वल्नरेबल ऑक्यूपेशंस होने चाहिए, वर्कर्स को इंडोर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, प्लस we should also promote decent and green employment as a solution for the future of the work. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, जस्ट आपको एक सेंस देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं जो बस ऐसा पता होना चाहिए कि अच्छा ये चल रहा है। ठीक है, और ये एडिटोरियल्स आते हैं और इससे हमें ना बस नो हाउ हो जाता है कि अच्छा ये चल रहा है, जो हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली मतलब आंसर्स में यूज़ नहीं होगा। ऑल्दो ये जो ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं, इनका यूज़ करके आपको बहुत सारे यूट्यूब और वगैरह वगैरह चैनल्स पे मिलेगा कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जबकि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे वन इज़ अबाउट दी वायलेंस इन यूएसए। अब देर आर टू ग्रुप्स, वन इज़ फार राइट एंड अनदर इज़ फार लेफ्ट ग्रुप।
दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिबेट होती है, आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इनकी टेंडेंसीज़ आपस में बढ़ गई है। अब ये टेंडेंसीज़ बढ़ गई है और उसकी वजह से अब पॉलिटिकल वायलेंस भी बढ़ रहा है। और हमने अभी-अभी देखा कि जो ट्रम्प कैंडिडेट रनिंग टू दी अमेरिकन इलेक्शंस, उन पे भी हमला हुआ और उनको गोली जो है उनकी कान को छू के निकल गई, ठीक है। ऑल्दो दैट पर्सन ही was holding an assault rifle and he fired around 8 to 10 times, but still Trump being very much lucky to save himself from that attack, and बिल्कुल माइनर एक इंजरी आई है। बट द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि पॉलिटिकल वायलेंस होता ही क्यों है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव और वहाँ के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली चीज़, हाईली कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, जिसकी वजह से अब अनसर्टेनिटी होती है आउटकम्स में। अनसर्टेनिटी होती है तो वो लोग कुछ ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, डीप स्टेट एक्टर्स का यूज़ करके, क्रिमिनल ग्रुप्स का यूज़ करके कैसे करते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट कहानी। वो करते भी हैं या नहीं करते हैं, दैट टू इज़ अलग कहानी। बट व्हाट आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। वी डीह्यूमनाइज एंड वी क्रिस्टलाइज द पार्टिजन डिविजन्स, ठीक है। जितने भी ये डिविजन्स हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिविजन्स अबाउट बीइंग राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, इनको पार्टिजनशिप की जाती है। लाइक कांग्रेस वाला बंदा बीजेपी वाले बंदे से बात ही नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के घर जाते भी नहीं है, दिवाली की शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जब टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी ऑल टुगेदर, जब इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में तो इवन दे कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, दे मीट विद ईच अदर, वो लोग साथ में ही स्पीकर को कॉन्ग्रेचुलेट करने चले जाते हैं, मोदी जी और राहुल गांधी जी। दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट व्हेन इट कम्स टू द पार्टिजनशिप, ठीक है, द पार्टिजनिंग ऑफ द डिविजन्स बिटवीन दीज टू आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, तो तब ऐसा होता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। Politicization of judiciary and the weakness of the law enforcement agencies is one more thing, ठीक है। These recommendations we can use in our own scenario also, कि यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग होनी चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल फंडिंग में रिफॉर्म्स आने चाहिए। देर आर मल्टीपल रिकमेंडेशंस कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्टोरल दिस फंड्स की या इलेक्टोरल एक्सपेंसेस की। ये वाला एडिटोरियल नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, टोटली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कि बाइडन चला गया, वो ये कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है कि तुम आगे चले जाओ। हाउएवर शी टू हैज़ सम, there are other candidates in the Democratic Party like Gretchen Whitmer, like Gavin Newsom or Pete Buttigieg. There are some of the persons who might be either they will unite with Harris or they will just part their ways, and there will be factioning in this Democratic Party. That is something different, a hypothetical situation which was created on this in this editorial. I would recommend to you to read such editorials. This is indeed an important thing, and it talks about financing the Indian Green Deal. What is Indian Green Deal? Understand this. What is Indian Green Deal? और ये चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, पहले चार्ट समझते हैं, उसके बाद हम ग्रीन डील पे आते हैं, ठीक है। तो डेटा कहाँ से लिया गया है? डेटा लिया गया है वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस से, जो कि NSSO 68 राउंड का डेटा भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंडिया का एक इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स डेटा आता है, वो भी यूज़ किया गया है, और PLFS का डेटा है वो भी यूज़ किया गया है। नाउ अंडरस्टैंड द चार्ट्स। अब इन सारे चार्ट्स में ये इतना सारा डेटा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चार्ट को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल तो है। एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं इस डेटा पॉइंट को महीने में शायद एक डेटा पॉइंट ऐसा आता है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तब जाकर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज आई डू नॉट डिस्कस इट एट ऑल, ठीक है। क्योंकि डेटा उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, देखो ये सब से पहले, अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन, लाइक अ सिटीजन फ्रॉम USA, है ना, एंड एन इलीट इंडियन सिटीजन, ठीक है, एंड एन इंडियन सिटीजन, नॉर्मल इंडियन सिटीजन, आप और मैं, ठीक है, तीनों का कार्बन एमिशन हो रहा है या पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है। तो अगर आप देखो इंडिया का जो इलीट पर्सन है और
जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एलीट पर्सन है, इन दोनों का कार्बन फुटप्रिंट ऑल टुगेदर लाइक सिमिलर लाइंस पे है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, ये वाला चार्ट क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की वजह से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, अदर सर्विसेज एंड फूड सेक्टर, अब इन सब की वजह से भी कितना ज़्यादा हो रहा है। द चार्ट प्लॉट्स द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दीज इंडियन इलीट्स अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज़। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं कहाँ पे? दो चीज़ों पे, एक ये हाउसिंग पे कर रहे हैं और दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स पे कर रहे हैं। अब अगर ये यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं और यही दो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड हाउसिंग सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और पर्टिकुलरली हेल्थ एंड एजुकेशन तो थोड़ा बहुत है, उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, दिस चार्ट शोज कि ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और केयर इकोनॉमी, ठीक है, का कितना रोल है इन दी टोटल इकोनॉमी। ठीक है, तो इट्स अराउंड, ग्रीन एनर्जी इज 52%, इंफ्रास्ट्रक्चर 131.1 बिलियन डॉलर्स, $52 बिलियन, एंड केयर इकोनॉमी इज अराउंड $78 बिलियन। सो ये तीन सेक्टर्स पे हमें काम करना चाहिए एज एन इकोनॉमी ऑल टुगेदर एट द नेशनल लेवल। और ये वाला चार्ट हमें क्या बोलता है कि ये तीन सेक्टर्स कितनी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 17 मिलियन पीपल है एम्प्लॉयड, ग्रीन एनर्जी में 8 मिलियन पीपल, केयर इकोनॉमी में 13 मिलियन पीपल है जो एम्प्लॉयड है। अब ये चार चार्ट से हमें क्या समझ आता है? पहली चीज़ हमें समझ आती है कि इलीट्स जो है वो इंडिया के और फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन कॉमन, ये दोनों सेम ही लेवल पे कार्बन एमिशन कर रहे हैं। और ये कार्बन एमिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है वो कुछ ही सेक्टर्स में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स और हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें ये लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और वहीं से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, द नंबर्स इन बोल्ड शो अस कि ये है ना, ये 27, 28, ये हमें ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो मतलब आप उतना ज़्यादा कार्बन जो है एमिशन में उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, वो एक्चुअल में आपके गुड्स प्रोड्यूस करने की वजह से हो रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इकोनॉमी में इन तीन कैटेगरीज का कितना रोल है। सबसे पहले तो इनका शेयर बहुत ज़्यादा है और दूसरा इनका एम्प्लॉयमेंट में शेयर ज़्यादा है। तो नाउ द पर्सपेक्टिव इज, जो आपको समझना है वो ये है कि ये इलीट्स है, इनसे पैसा लो, इनसे पैसा लो और वो पैसा लगाओ इन तीन सेक्टर्स में। और इन तीन सेक्टर्स से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो एम्प्लॉयमेंट में कौन जाएगा? वो मिडिल क्लास जाएगा, वो लोग जाएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत है, अ नॉर्मल इंडियन सिटीज़न वो जाएगा। और वो जब एम्प्लॉयमेंट गेन करेगा देन हमारे यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। और यही चीज़ है जो ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है यहाँ पे आपके साथ। ये एडिटोरियल बोल रहा है दैट दो चैलेंजेस है हमारे पास, एक अनएम्प्लॉयमेंट का है, एक इनइक्वालिटी का चैलेंज है। ठीक है, और हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि एक वेल्थ टैक्स लगाया जाए और उस वेल्थ टैक्स की वजह से, की हेल्प से फाइनेंस किया जाए किस चीज़ को? इंडिया की ग्रीन डील को। और इंडिया की ग्रीन डील, ठीक है, एक फंड क्रिएट किया जाए, कुछ पैसा निकाला जाए, इन हाई वेल्थ इंडिविजुअल से कुछ पैसा लिया जाए, उनको टैक्स लगा के वो इस ग्रीन डील में डाला जाए। और ये ग्रीन डील करेगी क्या? ये क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीन चीज़ों को टैकल करेगी और इन तीन चीज़ों के लिए पैसा खर्च करेगी। एंड वंस पैसा इज खर्चा, और उसके बाद ही फिर इजी हो जाता है आपका चर्चा। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है उसके बाद, क्योंकि पैसा ही मेन इशू है, पैसा ही मेन इशू है जहाँ से आपके सारे बाकी सारे इशू सॉल्व होने लगते हैं, ऐसा सबको ही लगता है। ठीक है, और ऐसा ही इकोनॉमी में भी लगता है। एंड ऑल टुगेदर इकोनॉमी इज़ अ साइंस ऑफ मनी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को समझना है, what is Indian Green Deal and what is all about this. We can further read about this editorial in detail. This editorial talks about three myths. ठीक है, three myths of gig economy. One is कि एग्रीगेटर्स अपने जो ये जिनको ये पार्टनर, और जिनको बोलते हैं कि तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, जिनको बोलते हैं कि तुम कैप्टन हो, इन सब को
एक ऐसा झूठा छलावा देती है, एक ऐसा झूठा धोखा देती है कि उनको बोलती है कि तुम्हारा ही ये सब कुछ, हमारा तो कुछ है ही नहीं। बट एक्चुअल में अगर आप देखो, ये लोग कुछ है नहीं, ये बस वर्कर्स है। इनको बस झूठ बोल के, कैप्टन बोल के, पार्टनर बोल के, नो बॉस कंपनी, नो बॉस एम्प्लॉयमेंट बोल के वो उनसे काम करा रही है बस, और सस्ते पैसे में काम करा रही है और ज़्यादा काम करवा रही है। वन मिथ इज़ दैट कि ये जो मिथ है आपका, नो बॉस नो पार्टनर, नो बॉस का, या तुम पार्टनर हो, तुम कैप्टन हो, ये सब मिथ है। आप असल में काम करने वाले वर्कर हो, इसको समझो। सेकंड मिथ इज कि दिस प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, दैट दे आर एंजॉइंग अ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, कि भाई तुम आ जाओ गिग वर्क, गिग काम करने, या गिग इकोनॉमी में आ जाओ, तुम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने आ जाओ, तो तुम्हारे लिए ये होगा कि जब तुम्हारी मर्जी तब तुम काम करना, जब तुम्हारी नहीं मर्जी तब तुम मत काम करना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। बट ये भी एक मिथ है। ये मिथ क्यों है? बिकॉज इट हैज़ इनेबल्ड द प्लेटफॉर्म्स टू कीप द गिग बेस्ड वर्कर्स अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शन अंडर द लेबर लॉज। क्योंकि अगर आपने इनको पार्टनर या कैप्टन ना बुला के इनको अपना एम्प्लॉय बुला लिया, तब तो आपको लेबर लॉज के साथ कंप्लाइंट होना पड़ेगा। एंड अगर आप लेबर लॉज के साथ कंप्लाइंट नहीं हो, तब तो आप पे पेनल्टीज लगेंगी। और चूंकि आप इनको एम्प्लॉय मान ही नहीं रहे हो, तो आप असल में अपने आप को बचा रहे हो, प्लेटफॉर्म्स अपने आप को बचा रहे हैं, बस इस चीज़ से कि उनको वर्कर ना बोल के उनको कैप्टन बोलना। थर्ड मिथ ये है कि ये जो वर्कर्स हैं, जितने भी ये वर्कर्स है काम कर रहे हैं, चाहे वो ऊबर के ड्राइवर हो, वो जोमेटो का राइडर हो, वो स्विगी का कैप्टन हो, वो कोई भी हो, जितने भी ये हैं वर्कर्स हैं, वो आप कहीं पे कंटेंट का काम कर रहे हो, आप कहीं पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये जितने भी लोग हैं, आपको पार्टनर बुलाया जाता है, इन सब का ऐसा पर्सपेक्टिव है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये प्लेटफॉर्म ओनर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब लोग ऑलरेडी कहीं पे कमा रहे हैं, ये सब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे पास ये बस पार्ट टाइम काम करने आते हैं टू हैव एन एडिशनल इनकम। बट ये भी एक मिथ है, क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हैं इन दी गिग इकोनॉमी। वो गिग बन के ही, गिग लेके ही काम कर रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा कोई काम मिल गया, करते गए और पूरा दिन ही वही काम कर रहे हैं, एंड इवन 10 आवर्स 12 आवर्स का शिफ्ट होता है इनका। और यही सब स्टडीज़ है और यही सब डेटा है जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। देयर इज मिथ 1, मिथ 2 एंड मिथ 3 which talks about all of this, and there is a study by Paigam and University of Pennsylvania, which finds around 96% of the cab drivers and delivery workers, they work for their daily earnings on this। जो हमें याद रखना है, दैट इज इंडिया का द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, which has inadequately addressed this gig workers। This article talks about the money bill, and the article talks about article this editorial talks about article 110, article 117 and article 109 of the Indian Constitution। मनी बिल क्या है? मनी बिल का डेफिनेशन कहाँ पे है? आर्टिकल 110 में डेफिनेशन है। इट टॉक्स अबाउट 6 थिंग्स। वन इज टैक्सेशन, बोरोइंग्स, कंटेंजेंसी फंड, इसका कस्टडी, appropriation and expenditure charged on consolidated fund of India, and the receipts which are received in consolidated fund of India or public accounts of India, and the audit of the union and state accounts। ठीक है, अभी ये चार पांच, ये जो 6 चीज़ें हैं, एग्जैक्टली 6 आइटम्स, ये आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं 6 आइटम्स। ठीक है, और ये जो 6 आइटम्स हैं, इनमें से अगर किसी भी एक आइटम पे लॉ बनाना हुआ, ठीक है, इसमें से किसी भी एक आइटम पे कोई भी लॉ बनाना हुआ, कोई बिल लेके आना हुआ, तो वो बिल मनी बिल कहलाएगा। बट ये कौन बोलेगा कि ये बिल मनी बिल है? तो ये स्पीकर बोलेगा। स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर एक सर्टिफिकेट देगा बिल के साथ और बोलेगा कि ये बिल मनी बिल है। अगर कोई मनी बिल आ गई, तो मनी बिल लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा का इसमें पावर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ऑल टुगेदर पावर है ही नहीं। इट कैन ओनली सजेस्ट some changes, that too within 14 days of time,
और वो चेंजेस भी इफ एक्सेप्टेड बाय लोकसभा देन ओनली द बिल विल बी deemed to be passed with the changes. Otherwise, Lok Sabha can take the bill as deemed to be passed by Rajya Sabha. Rajya Sabha does not have power to reject, so it cannot reject the bill. It cannot reject the money bill. अंडरस्टूड यहाँ तक? इसीलिए अब अगर ये स्पीकर के पास पावर है कि वो मनी बिल को मनी बिल बताए और राज्यसभा का जो पार्टिसिपेशन है, राज्यसभा का जो रोल है, उसको हटा दे मनी बिल से, तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा कि किसी भी बिल को मनी बिल बोलना और लोकसभा में उसको पास कराना, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, राज्यसभा का झंझट नहीं चाहिए, तो लोकसभा में जल्दी जल्दी पास करके उसको निकाल देंगे आगे। दैट इज़ वेयर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और यही चीज़ हुई थी हमारे दो बार। एक तो 2016 में हुई थी जब आधार एक्ट आया था, आधार बिल आई थी, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ कि दिस शुडंट हैव बीन डन। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट upheld the judgment, that is something different, upheld the bill as money bill, but it said कि हर एक बिल को मनी बिल बना के पास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल बिल्स। व्हाट आर फाइनेंशियल बिल्स? दे आर डिफाइंड इन आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 से दो तरीके की फाइनेंशियल बिल्स होती है, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2। तो हमने अभी तक देखा आर्टिकल 110 में 6 आइटम्स है, 6 में से अगर एक आइटम पे हमने लॉ बनाया तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, बट वहीं पे अगर हमने इन 6 में से एक आइटम लिया प्लस उसके साथ दूसरा एक और आइटम उसको ऐड कर दिया, चाहे कहीं से भी, पूरे यूनियन लिस्ट में से या कॉन्करेंट लिस्ट में से, यूनियन लिस्ट प्लस कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यहाँ से कोई एक आइटम लेके उसको ऐड किया, एक आइटम ये 6 में से, तो ये बन जाएगा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। ऑल दो अगर हमने कोई ऐसा बिल लिया जिसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है आर्टिकल 110 का, ठीक है, 6 में से कोई प्रोविजन नहीं है, बट बिल में क्या हो रहा है आर्टिकल 117 के अंदर, बिल में एक तो ये हो गया एक कैटेगरी 1, दूसरा कैटेगरी क्या बोलता है कि आपने क्या किया, आपने यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई एक्ट बनाना है, कोई बिल लेके आना है, कोई लॉ बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कोई आइटम लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम होगा एग्रीकल्चर का, नहीं एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट है। फॉर एग्जांपल वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स का आपने यहाँ पे कुछ लॉ लेके आना है ना, बट दिस रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या अगर आपने कोई लॉ लेके आ गए और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, फॉर एग्जांपल आपने यही वेट्स एंड मेजर्स का एक सर्वे कराना है, और नॉट ओनली सर्वे, आपको एक नई बॉडी बनानी है जो वेट्स एंड मेजर्स को रेगुलेट करेगी पूरे इंडिया में, तो आपको उस बॉडी का बजट बनाना होगा, और उस बॉडी के बजट के लिए आपको एक्सपेंडिचर चाहिए होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो अब ये सारी चीज़ें आप करोगे कैसे? आप एक बिल लेके आओगे जिस बिल को बोला जाएगा दैट दिस विल बी द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। ठीक है, बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व्स वन थिंग, दैट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नथिंग एल्स, then it will be called as financial bill. In all the matters, this financial bill is similar to ordinary bill only। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? बाकी यहाँ पे बस वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखा है जो मैंने बोला, 2016 का जुडिशियल रिव्यू वॉज क्लासिफाइड एज मनी बिल, आधार वाला जो बिल था, बट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द क्लासिफिकेशन बाय अ 4:1 मेजॉरिटी, जो मैंने अभी आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, बट उस टाइम पे क्रिटिसिज्म हुआ था बहुत ज़्यादा। Lastly, not lastly, there is one more a snippet from the newspaper, और यहाँ पे ना तीन चीज़ें डिस्कस की गई थी। वन इज़ फार्मर्स, ये तीनों चीज़ें हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये तो फार्मर्स के बारे में तो उनने बोला है, दूसरा है शिप बिल्डिंग, एंड तीसरा है इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर। ठीक है, इसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे ने ही बोला है ये तीनों के बारे में। व्हाट दे आर सेइंग इज टू थिंग्स। वन इज़ कि आर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड कि जो आप फूड आइटम्स पे एक्सपोर्ट बैन लगा रहे हो बिकॉज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है, या विदाउट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आप कुछ आइटम्स को बैन कर रहे हो एक्सपोर्ट करने से, उससे क्या होता है, फार्मर्स का
लॉस हो रहा है। तो आप ये जो बैन है ये आप मत लगाओ, इस बैन को आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लगाओ, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली 1.4% का इस साल का ड्रॉप हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ठीक है, और फार्मर्स की इनकम में, क्योंकि एलिनो आया था। तो आप ये एक्सपोर्ट को बैन मत करो। क्यों ना बैन करो? क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस है, प्राइसेस अप है। तो जो ये फार्मर्स बेच रहे हैं अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट में, तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज अबाउट द मैरीटाइम विजन 2030। तो ये मैरीटाइम विजन 2030 ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शिपयार्ड्स, इंडिया में अभी रजिस्टर्ड शिपयार्ड्स 39 है, जो कि इंक्रीज़ हुए हैं पहले से। 2026 तक और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट हेयर कि ये जो मैरीटाइम विजन 2030 का है, इट एम्स कि हम पोर्ट्स, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज पे कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए कम से कम 3.5 लाख करोड़ का, ठीक है। प्लस जो ये हमारा मैरीटाइम अमृतकाल विजन है, ये चाहता है 300 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स यहाँ पे हैं जो कोस्टल रीजन्स के लिए है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि मैरीटाइम विजन 2030 का जो है ये क्यों आया था और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये 2030 का जो मिशन है, विजन है, मैरीटाइम विजन, इट इज़ अ 10 ईयर ब्लूप्रिंट, ठीक है, फॉर मैरीटाइम सेक्टर। और ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। और कहाँ पे लॉन्च किया था? उस टाइम पे हो रहा था मैरीटाइम इंडिया समिट। और ये कब हुआ था? ये 2020 में हुआ था, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो विजन है, दिस हैज़ सुपरसीडेड द सागरमाला इनिशिएटिव, ठीक है। एंड इट एम्स टू बूस्ट द वाटरवेज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड एनकरेज क्रूज टूरिज्म। अभी इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सबसे पहला इनिशिएटिव है मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड, जो कि 25,000 करोड़ का एक फंड है। किस लिए? फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, ऑफ द सेक्टर, जिसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा अराउंड 2500 करोड़। सेकेंड इज, ये डेवलप करना चाहता है एक पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो कि पैन इंडिया बेसिस पे इंडिया के पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी। प्लस ये डेवलप करना चाहता है एक रिवराइन डेवलपमेंट फंड को भी, ठीक है। और ये फंड क्या काम करेगा? फॉर एक्सटेंडिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम। नेक्स्ट important thing was about the blue economy and this important thing that Amrit Kal Vision 2047। तो ये विजन क्या बोल रहा है हमारा? दिस इज अबाउट इंडियाज मैरीटाइम एंड ब्लू इकोनॉमी। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल जो मैरीटाइम समिट हो रही थी, ट्वेंटी 23 की, जो मुंबई में हुई थी, ठीक है, ये जो समिट हो रही थी ये मुंबई में हुई थी, अक्टूबर के महीने में हुई थी 2023 में। इस समिट में ये अमृतकाल विजन 2047 आया था। अब ये क्या चाहता है ये विजन, और ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है? हमें एडवांस्ड मेगा पोर्ट्स बनाने हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है, हमें एक्सपैंड करना है इनलैंड वाटरवेज को, मल्टी मोडल हब्स को। प्लस देर इज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ओवर हेयर जो हमें याद रखना है, दैट इज पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इसको याद रखना है। एंड पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस, ये दो स्लोगन्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं शिप बिल्डिंग के लिए।
प्लस इंटरनेशनल ट्रैवल को लेके इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट कर रही है कि हमें इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे हब्स को अपना वो सारा डिपेंडेंसी उन्हीं पे डाल दें। उन पे डिपेंडेंसी हटा के हमें इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे एयर इंडिया, इंडिगो ने ऑलरेडी अपना फ्लाइट साइज़ बढ़ा दिया है, फ्लीट साइज़ बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया को भी करना चाहिए, बिकॉज इंडिया के एयरपोर्ट्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। 140 एयरपोर्ट्स हैं अभी इंडिया में 2014 के बाद से। ये वाला एडिटोरियल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जस्ट इन केस दैट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडिटोरियल है किस बारे में और ये एडिटोरियल डिस्कस क्या कर रहा है। रेस्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं ना एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी का खेल बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आया। ईपीडब्ल्यू मैगजीन से हर साल कम से कम एक एडिटोरियल तो फंस ही जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मीन्स में, ठीक है। ये हर साल का खेल है। अब ये इशू आया है जून में ईपीडब्ल्यू का। अब ये इशू क्या बोल रहा है कि कॉरपोरेट बोर्ड्स जो होते हैं, जो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है, उसमें इंक्लूसिविटी, उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, जेंडर पैरिटी उसमें। अब ये एडिटोरियल दो जगहों को कंपेयर कर रहा है, एक इंडिया को एक यूरोप को, कि दोनों जगह पे कॉरपोरेट वर्ल्ड में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है उसमें जो फॉर एग्जांपल हमारे पीएसयूज़ हैं, या प्राइवेट सेक्टर में एमएनसीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या वो एमएनसीज़ नहीं है, वो नेशनल लेवल की कंपनीज़ है ना, बट बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें कितनी फीमेल्स होती है और कितने मेल्स होते हैं, ठीक है। ये एडिटोरियल हमारे सोशल जस्टिस पेपर GS1 का, हमारे ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, तीनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द जेंडर डाइवर्सिटी इन कॉर्पोरेट बोर्ड्स, मतलब क्या है इसका कि जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। इससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स होंगे। लाइक प्लेटो, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, ही सेज दैट कि अगर ये वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा लेबर फोर्स में, है ना, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, डिसिप्लिन होगा, प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, एंड दिस विल ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। एज आई से कि फॉर एग्जांपल एक ये लेडर है, ये लैडर है, स्टार्ट से लेके ऊपर तक, यहाँ पे वर्कशॉप लेवल वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो काम कर रहे हैं ब्लू कॉलर इकोनॉमी के लोग, ठीक है। यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हेल्पर्स काम कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल वाले काम कर रहे हैं, है ना। एंड द टॉप ऑफ दिस लैडर, यहाँ पे कॉरपोरेट का बोर्ड है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया और यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, कितना ज़्यादा अंतर है दोनों में। जितना लेवल में बढ़ता जाएगा, जितना लेवल में ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, उतनी ही वो ग्लास क्लिफ जो फिनोमेना है, वेयर द वुमेन आर प्लेस्ड इन द हाई रिस्क लीडरशिप रोल्स, वो चैलेंज हो जाएगा। और वुमेन की जो सक्सेस है ना, एक बार आ जाएगी ना, जैसे मिंत्रा की सीईओ देख लो आप, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किरण बेदी को देख लो, उनके बाद सिविल सर्विसेज में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के ही ऐसा होता है। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनिज्म इन द डाइवर्सिटी ऑफ दीज कॉरपोरेट बोर्ड्स। टोकनिज्म का मतलब क्या है कि ओनली वन वुमन शुड बी देयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इनसफिशेंट है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट एडिटोरियल क्रिटिसाइजेस। एडिटोरियल आपको नॉर्वे, ऑस्ट्रिया एंड अदर कंट्रीज का पर्सपेक्टिव भी देता है कि वहाँ पे बोर्ड्स में, जो कॉर्पोरेट बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे कितनी वुमेन पार्टिसिपेशन होती है। और इंडिया में क्या है कॉन्टेक्स्ट, लेजिस्लेटिव एफर्ट्स क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है यहाँ पे कि इंडिया में एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड
कि सर्टन लार्ज और मतलब जो लिस्टेड कंपनी होगी और जो अनलिस्टेड कंपनी होगी, दोनों को ये रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन वुमेन डायरेक्टर इन दैट कंपनी. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड इट आउट while you download the PDF. ठीक है. One more important thing was about the carbon border management, carbon border adjustment tax. Basically simple explanation इसका ये है, for example European Union and you can talk about China. ठीक है. चाइना इज़ प्रोड्यूसिंग फॉर एग्जांपल बॉटल्स, और ये जो बॉटल्स है ये एक फर्नेस में बनती है और वो फर्नेस कोल पे चलती है. ठीक है. तो ये कोल बर्न होके चाइना में बॉटल्स बनती है और ये बॉटल्स एक्सपोर्ट होके यूरोप जाती है. ठीक है. वंस दे रीच द बॉर्डर ऑफ यूरोप दे आर बीइंग चेक कि ये बनी कैसे, और उनको पता चलता है कि यहाँ पे CO2 का एमिशन बढ़ गया और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, तो वो इस पर एक टैक्स लगाएंगे. ठीक है. बिकॉज दे वॉन्ट दिस इंडस्ट्री, दिस बॉटल इंडस्ट्री टू चेंज टूवर्ड्स ग्रीनर इनिशिएटिव्स. ये ग्रीन एनर्जी को यूज़ करे, ग्रीन मैकेनिज्म्स को यूज़ करे और अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ग्रीनर बनाए. एंड वंस इट बिकम्स ग्रीनर देन इवेंचुअली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे प्रोडक्शन ही ग्रीन हो जाएगा और कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे. बट इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि ये जो एक्ट है, ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, ये प्रोटेक्शनिस्ट है. क्यों प्रोटेक्शनिस्ट है? क्योंकि ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन की जो अंदर की इंडस्ट्रीज़ है बस वही, और जो डेवलप्ड वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ है बस वही एक्सपोर्ट करे यूरोपियन यूनियन में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी भी यूज़ कर रही है फॉसल फ्यूल्स का, क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हमारे पास अभी भी टाइम है कि, नॉट टाइम नहीं है बट हम अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए कि हम ग्रीनर हो. हमारे पास टाइम दिया जाए 2070 तक का, चाइना को टाइम दिया जाए 2050 तक का, चाइना ने ऑलरेडी प्लेज लिया हुआ है 2050 का. तो उस टाइम को ये कंसिडर किया जाए, बल्कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है. ये उल्टा एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जो बाकी सारी इकोनॉमीज़ को डिस्करेज कर रहा है. ऐसे यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है इस चीज़ का. तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आपको समझ आ गया होगा. लास्ट में आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनोज. न्यूट्रिनोज क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, सिंपल. क्योंकि न्यूट्रिनोज के बारे में हमारे यहाँ भी एक रिसर्च, दो रिसर्च ये है, लैब्स हैं. पहला, न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. समझ में आ गया? ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस पार्टिकल है. ये मासलेस पार्टिकल नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल नहीं है. इसका मास बहुत कम होता है, स्मॉल मास. इट एग्जिबिट्स लेफ्ट हैंडेडनेस. लेफ्ट हैंडेडनेस का मतलब क्या है कि जब ये स्पिन करता है, मीनिंग दैट इट स्पिन्स इन द ऑपोजिट ऑफ देयर मोशन. ठीक है. जिधर ये जा रहा होता है, जिधर इसकी मोशन हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है, उस डायरेक्शन के अपोजिट में ये स्पिन कर रहा होता है. दैट इज वाई इट टेंड्स टू हैव दिस लेफ्ट हैंडेडनेस. यहाँ तक क्लियर आ गया समझ? इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटॉन्स. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट पार्टिकल है यूनिवर्स में, इट इज़ फोटॉन्स. ठीक है. उसके बाद आता है न्यूट्रिनोज. Understanding them will help us to understand the universe better and develop new technologies to understand universe. ठीक है. तो इसीलिए न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. न्यूट्रिनो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स जैसे नोवा एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा नाम है नूमी ऑफ एक्सिस वी अपेयरेंस. ये कहाँ पे है? ये मिनेसोटा USA में है. मिनेसोटा में ये क्या कर रहा है? इट क्रिएट्स अ बीम ऑफ न्यूट्रिनोज which is directed at a 14,000 ton detector which is located 800 kilometers away. और उससे हमें पता चलता है कि ये जो न्यूट्रिनोज है, ठीक है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, देखो 800 किलोमीटर का ट्रैवल करा रहे हैं ये इसको, किसको? न्यूट्रिनोज को. कि एक साइड से न्यूट्रिनोज जा रहे हैं, 800 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ, उस डिटेक्टर को ये जाके वो डिटेक्टर के साथ ये दे कोलाइड विद द डिटेक्टर एंड दैट डिटेक्टर रीड्स इट आउट कि ये जो न्यूट्रिनो है इसका स्टेट चेंज हुआ है या ये सेम स्टेट में है अभी भी.
और इसमें जितनी चेंजेस आएंगी उतना ही हमें भी पता चलेगा कि एक्चुअल में इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोस हुआ कैसे। अंडरस्टूड। दूसरा है हमारे पास लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यूरोप में है। इट ऑब्जर्व्स द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज इन अ पार्टिकल कोलाइडर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये क्या यूज करता है? ये पार्टिकल कोलाइडर यूज करता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली इफ यू सी, पहली बार जो डिटेक्शन हुआ था इनका, इट वाज इन 1987। और उस टाइम पे जो हमने डिटेक्ट किए थे वो न्यूट्रिनोज थे जो सुपरनोवा से हुए थे। वो सुपरनोवा बहुत दूर हुआ था, अर्थ से बहुत दूर, और उसको यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। नाउ द पॉइंट इज, it's said in the scientific analogy that millions and billions of neutrinos pass human body every second। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके बीच में से न्यूट्रिनोज पास होकर चले जाते हैं। एंड ये जो न्यूट्रिनोज है, ये जब पास हो रहे होते हैं, दे डू नॉट इंटरैक्ट। अंडरस्टैंड, दे डू नॉट इंटरैक्ट। ठीक है, why they do not interact? Because they take too much of time to interact, and one in millions, जब उनका वन इंटरेक्शन होता है, वो एक बार रिएक्ट करते हैं इवन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द ऑब्जेक्ट फॉर मिलियन टाइम्स। इसीलिए इनको रीड करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, दीज न्यूट्रिनोज आर इन अ सुपर पोजिशन। इसीलिए इनकी स्टडी करना हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वंस वी स्टडी न्यूट्रिनोज, देन ओनली वी कैन स्टडी द क्वांटम फिजिक्स एंड वी कैन डेवलप एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? बाकी आप थोड़ा सा और देख लेना। आई विल रिलीज अ ब्रीफ वीडियो of 10 to 15 minutes in which you will understand what is the mechanism behind these neutrinos. Done? ये एक एडिटोरियल मैंने कल डिस्कस किया था अबाउट दी मॉनसून, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, लानीना क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हो। अगर वो आप अभी आपने नहीं देखा है, आप कल का डिस्कशन देख सकते हो ईजीली। लास्टली, क्लोजिंग द डिस्कशन विद यूपीएससी पीवाईक्यू। यूपीएससी का जो पीवाईक्यू था ये 2023 के मेंस में आया था। 2023 के मेंस में पूछा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। मतलब क्या है इसका? कि कास्ट आइडेंटिटी कभी कभी फ्लूइड हो जाती है, कभी कभी स्टैटिक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर में आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि ये स्टैटिक कब थी और ये फ्लूइड कब हो गई। ठीक है, कि ये चेंज कब हो जाती है, ये स्टैटिक कब रहती है। ठीक है, जैसे कास्ट कॉन्शियसनेस बनी कैसे? कास्ट कॉन्शियसनेस कॉलोनियल टाइम से ही बनी। क्यों? क्योंकि उसी टाइम से देर आर सम कास्ट बेस्ड रिफॉर्म मेजर्स, सम कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स लाइक जस्टिस पार्टी, लाइक टेम्पल एंट्री मूवमेंट, है ना। उसके बाद देर वेर द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कब बना? जब द एरा ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब द एरा ऑफ रिजर्वेशन, द मंडल एरा, द पॉलिटिक्स बिहाइंड द मंडल पॉलिटिक्स। ठीक है, देन उसके बाद फिर मिडिल कास्ट इमर्ज हुआ। मिडिल कास्ट में जाट्स आ गए पंजाब में, पटीदार्स आ गए गुजरात में, कम्माज आ गए, रेड्डीज आ गए, यादवाज आ गए बिहार में। ठीक है, भूमिहार्स आ गए, बहुत सारे ऐसे कास्ट आ गए जो सब कास्ट कैटेगरीज में आते हैं। और फिर कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट हुआ। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दे वांटेड टू लेवरेज द रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर देयर कम्युनिटी। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस डिस्कशन ओवर हेयर। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी through the institution, or you can directly approach me also and get your all of the doubts resolved। आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वी हैव गॉट ऑल योर बैक। हम आपको पूरा अच्छे से गाइड कर सकते हैं इन आर फ्री मेंटोरशिप सेशंस। ठीक है, आपके साथ एक 1-to-1 सेशन होगा जिसमें आपको
स्टार्ट कराया जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। उसके बाद आपको वीकली कॉल्स आएंगी एंड देन वीकली सेशंस जो होंगे आपके जूम के, वो आपका टारगेट सेट करेंगे कि आपको अगले हफ्ते में कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, कितना पढ़ना है, कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कहाँ से सॉल्व करने हैं, क्या करना है। एवरीथिंग विल बी इन डिटेल और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीक आपको इन टारगेट्स को चेक किया जाएगा कि आपने पिछले वीक के टारगेट्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। ठीक है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन हेयर।